Today, I remember one particular girl who had been a very, very dear student of mine. She has taken her life. I am Dr. Swarupa Mitra. I'm an oncologist working in this profession for over 30 years. I am a startup founder. I'm here to talk about personal growth and how to love oneself. And finding balance between their personal and professional relationships. I'm here to talk about fitness and diet. I would like to talk about my mother. 4B मूवमेंट के नाम से जान रहे हैं या जो विमेन हैं वो कॉन्शियसली ये डिसाइड कर रही हैं कि उन्हें शादी नहीं करनी, बच्चे नहीं करने या इवन वो मेन को डेट भी नहीं करना चाहती हैं। अब विमेन को ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम बड़े हुए हैं अपनी मम्मी को, अपने दादी, इन लोगों को देखकर। इन्होंने अपना मेजर लाइफ किचन में ही निकाल दी कि सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है लड़की है तो टीचर बन जा। पूरे सिस्टम को मतलब मेन को बायकॉट कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। आज भी हमारा जो प्रोग्राम है मेन ही कर रहे हैं। किसी भी लड़के से अगर मैं बात करती हूँ लाइक फॉर डेटिंग, तो मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आप जब मैं मेरी बेटी के लिए प्रपोजल्स आते हैं तब मैं यही देखती हूँ उनकी मदर वर्किंग है कि नहीं। या कोई लड़की कैसे चूज करेगी जब उसके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, बहुत सारी डायरेक्शंस है। हमें पता भी होता है कि ओके फाइन हमें सोशल मीडिया को कट डाउन करना है, लेकिन हम नहीं कर पाते, तो ऐसे में हम क्या करें? उनका हमेशा बहुत हैप्पी पोस्ट आता है। मेरे पास आए, बोले कि मैम मेरा प्रोस्टेट कैंसर है स्टेज 4, आई हैव टेकन लॉट ऑफ ट्रीटमेंट लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। अगर आप कोई एडवाइस दे सकते हैं टू द मैन अराउंड यू, टू द मैन इन जनरल इन द वर्ल्ड, तो आप क्या देते? So I have been in practice for over 30 years. मेरे students आते हैं, मेरे colleagues आते हैं. There are many who are young women from different parts of the country. Today I remember one particular girl who had been a very, very dear student of mine. She came from far south of India. She came to study with lot of hopes, lot of dreams, and during the course of the time I was with her, she was a very hard-working girl. But gradually she passed her post-graduation with bright colors, and later on when she began her journey as an oncologist, she had to face many other things which we from a distance, we probably do not understand or don't visualize at all. She had to struggle between her career, her personal life, her neighborhood, the society. So one fine day she was very close to me, and I knew that she needed counseling, and we did give her counseling. But little did I know when all of a sudden, I got the news that she has passed away. She has taken her life. And that was the time when she had left my hospital. And I wish, even today I wish, I had insisted upon her that she does not leave my hospital and go. So this actually makes me think many times the kind of problems, the kind of mental issues, health issues, and so many other unspoken issues women feel about. And this is not only in my generation, I think this has been there right from time immemorial. So today I wanted to speak to all strata of women, women who are educated, who are working on their own, women who are struggling to make a foot for themselves, to see where we have been in the beginning and where we have come now. Has things changed at all for us? Or we still want our position to change. We want to look at a much safer, a much beautiful world for women. So happy Women's Day to everyone. I am Dr. Swarupa Mitra. I'm an oncologist working in this profession for over 30 years. This is we have been chatting with all these girls. They come from, not only from Gurgaon, but they come from Delhi and even from other cities who have taken the trouble to come over here and spend some time here with us, talking about their experiences and discussing different problems. So let me have the privilege of asking each one of them to introduce themselves and speak one line about what this day means to them or whatever they think about it. So hi everyone, my name is Naman and I am a startup founder.
and I'll be talking about career balancing and how you should try new things out. Hello everyone, I'm Dr. Priya and I'm here to talk about personal growth and to how to love oneself. हेलो एवरीवन मेरा नाम दीपिका गुप्ता है एंड आई हैव बीन इनटू टीचिंग फ्रॉम लास्ट 16 or 17 years and still I am searching for the question who I am. And today, on the occasion of Women's Day, I am here with so many different women around me from the different parts of India. And I'm here to searching for the answers and insights for some questions. Basically, I'm focusing on how women deal with the emotional stress and finding balance between their personal and professional relationships. Thank you so much. Hello everyone, I am Mansi. I am here to talk about fitness and diet and how it's very important for women. Hi everyone, I'm Shubhangi. I am from NIF Delhi, second year, and I would like to talk about my mother today on the occasion of Women's Day because I think she's the most important woman in my life. And I would also like to talk about the day-to-day abuse that women face in their life each day. On the topic of relationships, I think I would like to know more about what do you do when you lose yourself in your person, like when you're dating someone or when you're married to someone, you're too much in love and you lose everything, like nothing comes to your mind, the time loses its meaning, and before you know it, it's 9 p.m, college has ended, they have gone home and you don't know what to do. So what do you do? Have you ever faced that in your life? You mean to say that how to deal with with a relationship which is very close to you? Yes. And you're आप obsessed. actually- I think this is an obsession. आप I think actually this is खुश an होते हो? obsession. Yeah. थोड़ा सा But I think you'll have to get over this. Because if you do not prioritize yourself, I believe nobody else will do. हाँ. If I project this, that no, my time is useless for me, I am totally yours. So why will the other person value your time? पर If I don't value my time, my position, my confidence, why will the other? बट हमारे केस में थोड़ा डिफरेंट है Yeah. क्योंकि हम दोनों सेम ही है, लाइक इन द सेंस हम Yeah, हम yes. सेम I got लेवल it. पर हैं Yes. एंड yes. सेम वे में ऑब्सेस्ड है. तो हम दोनों की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है. तो आपने कभी ऐसा फेस करा है कि दोनों की लाइफ थोड़ी सी इफेक्ट हो रही है इस चीज़ से? ये होते हैं. I आप can लोगों ने understand. भी- Absolutely हो सकता है. And I think there is nothing to be very guilty about it. Absolutely, don't need to be apologetic about it. Okay, so what you can do, do something. You can do something both together. Have a single aim, and both of you can work together. Both of you can go out together, venture out together. And many times what happens, too much of closeness, too much of proximity breeds contempt. So that is what a saying says, too much proximity breeds contempt. So you need to keep that in mind also. आप बहुत हंस रहे हो, आप बताओ. So these are teenage hormones, I think. Yes, and we are meant to feel these to understand that what comes next. You will not be able to understand true love if you don't feel this. When you can't choose someone else or choose yourself if you have not lost yourself once. So this is very important, and the next step is also very fun, and you will love it. You have scared me. So this is the generation difference again. She's leaving you with the disclaimer that you love it. तो मैम मेरा क्वेश्चन है कि जब हम कुछ बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम बिल्डिंग माय ओन स्टार्टअप एंड यू हैव, आपने जब अपना करियर बनाया है तो कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि वी आर लूजिंग आवरसेल्व्स, या समटाइम हम बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं अपनी चीज़ों को लेके. तो हाउ डू वी लाइक कि हम अपने साथ वो रिलेशन कैसे मेंटेन करें जहाँ पे हम अपने आप को समझे, या हम अपने आप को एक टाइम दें कि ओके फाइन, अब नाउ आई एम बीइंग हार्श, वो एक हार्मोनल है या आपके मतलब आपके ऊपर वो करियर का एक प्रेशर है, तो हम उन चीज़ों को कैसे हैंडल करें? मेरा एक थोड़ा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है यहाँ पे.
For me also many people ask me, आपको burnout नहीं होता है? लेकिन I think if you love something, you love to do something, that can never be a burnout. Okay. That if you love your what you're doing, your project, you will never be harsh with yourself. ओके बट मैम जब उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा होता है तब एक बारी के लिए ऐसा फील होता है कि ओके थिंग्स You mean, I think then this is something else you mean, that getting depressed, या disheartening, disillusionment. So this is part and parcel Okay. of, you cannot have all roses everywhere. Yeah. Every rose comes with a thorn also. Yes. So I think you'll have to learn to take them in your stride. So when you walk, just have that confidence in what you're doing and have a plan worked out. And to be practical, have something in the where you can fall back. ओके So that just in case, because you have to be practical, just in case it does not work out. So you can fall back on something else. Give it a time and then maybe start once again. So don't just glue yourself to it. Every road has got ups and downs. So there's no need to be getting so disheartened or disillusioned. This is a part of the journey. Okay, and like in your career or something, do you have ever felt it like you need to have somebody around you, like your family or your friends? Because sometimes फैमिली भी चीज़ें नहीं समझ रही होती, फ्रेंड्स भी नहीं समझ रहे होते, देन यू लाइक कि कोई तो हो, वैसे वाली एक फीलिंग आती है कभी आपको? I think though there's no need to feel disillusioned. Just be very confident of what you're doing. So whenever you start a project, spend time on thinking, whether you are doing the right one or not, whether you are very confident that you will get the results, what you have done, what you have planned, and there should be a chalked out plan. And that plan includes both positive. Sometimes you do better than you have expected. Yeah. So you should be able to deal with it. At the same time, there may be disillusions. It may not do well. So again, then sit back and think once again. Think once again that whether what you had thought, was it the right one or not. So if you think it is the right one, okay, give yourself time, start once again, maybe with a new plan. So it happens with everyone. If I talk about myself, I wanted to become a surgeon. So the first time I appeared for post-graduation, I did not get any surgery seats. So I was very disillusioned because I had thought, I'd be a surgeon. And I knew that I would, because I was a good student otherwise, but somehow I didn't get. So next year again, I sat for the examinations. I got ENT at a place which was very far off, and the session was running very late. So again, like you say, I was far from my goal. There was disillusionment. But then I thought to myself that now is the time, maybe I have to look at my aim once again, revise my aim. Then that time I got this oncology. The third time I got in oncology. Okay. So in oncology, I asked my seniors whether we should go in this or not. So they said that yes, please go ahead, because when you start, I was in my state, I was the first female oncology student. Okay. So all my seniors, they said later on, after about 10, 15 years, there'll be a huge, huge need in oncology. Okay. So many times, I think God has something made for you. If even after trying you do not achieve your goal, that means you are made for something else. Okay. But again, this is not to answer your questions. If you are very confident in your goal, don't be bothered about small depressions, small humps. There are humps on the Yeah. way. They actually are speed breakers. So you have to be very confident in what you do and go ahead with it. You may need to change the plan. You may need to change the route. Sometimes the route you go, your aim is, it may not be very straight. So you change the route, but the aim should be the same. The most important, I believe, is that having the confidence within yourself. ओके मैम सम टाइम ऐसा होता है ना कि आपका वो कॉन्फिडेंस आपको पता है वो ब्लर हुआ है अभी फ़िलहाल के लिए, बट एक होता है कि जैसे फ्रेंड्स और फैमिली तो वो आपको एक पुश दे देते हैं ना, यू गो बैक टू इट. हैज़ दिस एवर हैपन टू यू, या कभी ऐसा आपको लगा? Oh, yes, it has happened to me so many times. Friends and family, they may, like you said, if you have your goal fixed. अर्जुन का जो स्टोरी था, हाँ. अर्जुन है कि बस सामने देखना है, हाँ. towards that eye he has to see. वहाँ से अगर नज़र हट गया,
then then you're aimless then. So I think you have to be very, very careful, very convinced in what you do. Others there are there, and it is up to you whether you attach importance to them or not. And it is no, you don't need to rebut. You don't need to answer everyone. You'll have to speak with your work. So one day they will accept that what you did was the right way. Because initially, not taking it in a negative way, your parents, your brothers and sisters, they're all your well-wishers. They are worried about you. So they may say that, no, you're not doing it well, so change your goal now. They may say, but if you are confident, so your confidence is all that matters. So don't think, what others are saying. But every time, there are as many people are there will be as many tongues and as many mouths. Okay, ma'am. So self-confidence is very, very, very important. जैसे कि आजकल बहुत एक पॉपुलर मूवमेंट चल रहा है ग्लोबली, जिसे हम 4B मूवमेंट के नाम से जान रहे हैं। तो उसमें जो स्त्रियां हैं या जो विमेन हैं, वो कॉन्शियसली ये डिसाइड कर रही हैं कि उन्हें शादी नहीं करनी, बच्चे नहीं करने, या इवन वो मेन को डेट भी नहीं करना चाहती हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सो you're right, ऐसा तो हो रहा है, एंड इसके लिए बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे हैं, कारण काफ़ी सारे हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एक इन एवरी सोसाइटी एक बहुत एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इसमें ये था इंटरडिपेंडेंसी था, दोनों एक दूसरे पे निर्भर करते थे। विमेन डिपेंडेंट ऑन मेन, फिनेंसेस के लिए वो डिपेंड करते थे, एंड मेन डिपेंड करते थे उनकी फैमिली रन करने के लिए, एक इमोशनल डिपेंडेंसी थी। अब जो है ये डिपेंडेंसी ख़त्म हो गया है। अब विमेन को ज़रूरत नहीं पड़ती है फिनेंशियल हेल्प के लिए, क्योंकि सारे मोस्ट ऑफ द विमेन दे आर वर्किंग, दे पढ़ाई किए हैं, एंड उनके पेरेंट्स भी वेरी पॉजिटिवली पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उनको उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ऑन दी अदर हैंड उनको लगता है अगर हम शादी कर लेंगे शायद मुझे वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, शायद मुझे अपना करियर छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो आई थिंक जैसे हम लोग देखते हैं आजकल दैट विमेन दे हैव बीन रेज्ड डिफरेंटली, कि अपने पैर पे खड़े हो जाओ, डोंट डिपेंड ऑन एनीबडी, टेक द डिसीजंस ऑफ योर ओन लाइफ। लेकिन ऐसे फीमेल्स को हैंडल करने के लिए, उनके साथ रिलेशनशिप्स में जाने के लिए men have not been prepared. They have to be changed. Men have to be brought up. उनको उनके parents different way से उनको bring up करना पड़ेगा। I have seen this in my own family also. मेरे girls हैं, मेरी sister के boys हैं, तो हमारा जो mental wavelength है, the way we look at society is absolutely different. बट मैम, जैसे कि आपने बोला कि क्योंकि अब ज़रूरतें कम हो गई हैं एक दूसरे की, लेकिन एक ये भी है कि ये जो मूवमेंट आया साउथ कोरिया से जैसे कि आया है, तो वहाँ पर क्योंकि बिकॉज सिस्टम इज़ अनइक्वल, हाँ, ना, तो इस वजह से जो विमेन है वो बाइकआउट कर रही हैं शादी को, बच्चों को। तो आई थिंक जो आपने आंसर दिया है, इट इज़ मोर अबाउट पर्सनल चॉइस, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो एक साथ मिलकर आ रहे हैं और वो पूरे सिस्टम को, मतलब मेन को बाइकआउट कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। देयर हैव बीन बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग मेन है, बट मैम देयर नंबर इज़ वेरी लेस। लेकिन उसी में वैसे मेन अगर सामने आते हैं, आज भी हमारा जो प्रोग्राम है मेन ही कर रहे हैं, सो दे आर ऑल अ ग्रुप ऑफ मेन जो हमारा ये प्रोग्राम कर रहे हैं, एंड तो मेन है, देर आर मैनी गुड मेन हमारे, जो हम लोग इतने सारे वेमेन हैं इस पोजीशन में हैं बिकॉज ऑफ आवर फादर्स, मे बी नॉट बिकॉज ऑफ द मदर्स बट मैनी टाइम्स बिकॉज ऑफ द फादर्स। तो ऐसे लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग सामने में नहीं आते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऐसे लोग के नंबर बढ़ेंगे विल हैव मोर। तो मैम ये नंबर बढ़ेगा कैसे? ये अब नेक्स्ट जनरेशन, अब हमें ब्रिंग अप करना है अपने बॉयज़ को इस वे से। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दीज काइंड ऑफ मेन? किसी भी लड़के से अगर मैं बात करती हूँ लाइक फॉर डेटिंग, तो मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आपको घर के काम आते हैं, आपको किसने सिखाए हैं, आपकी मम्मी ने सिखाए हैं, आपकी दीदी ने सिखाए हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग। मैंने देखा कि मेरी फैमिली में
मेरे भाई को कोई भी घर का काम करने को नहीं बोला जाता था, तो मैं उसको सिखाती थी कि तुम करो कि आगे जाके एक लड़की का भला होगा. सो दिस इज़ हाउ आई डू इट. एक वे है, दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. अगेन आई डोंट मीन एनीथिंग टू women who are not working. जो बॉयज़ के मदर वर्किंग थे, these boys are brought up in a different way. वो समझते हैं फीमेल्स जो women काम करते हैं उनकी वर्क लाइफ बैलेंस, ऐसे बॉयज़ वो समझते हैं. तो जब मैं मेरी बेटी के लिए प्रपोजल्स आते हैं तब मैं यही देखती हूँ उनकी मदर वर्किंग है कि नहीं, उनकी सिस्टर वर्किंग है कि नहीं. इट्स नॉट ओनली वर्किंग, हो सकता है वो वर्किंग नहीं हो लेकिन उनका एक अपना ड्रीम है, अपना एक एम है, एम्बिशन है और वो उस एम्बिशन को फॉलो कर रहे हैं. तो मेरे हिसाब से ये एक वे है ऐसे लोगों को ढूंढने का. मैं मतलब लाइक कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे रहे हैं उसके आधार पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी. लाइक जैसे कि अगर हम किसी से मिलते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो मेन हैं वो प्रिटेंड करते हैं कि जैसा आप चाहते हो आई एम एक्चुअली दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, बट लेटर ऑन हमें मिलता है कि वो कुछ अलग ही हैं, वो वैसे हैं ही नहीं, बिकॉज दे want that you should come with them, तो they pretend like that. So इस केस में क्या किया जाए? आई थिंक उसमें ओनर्स तो हमारे ऊपर ही है, बिकॉज फ्यूचर नोबडी हैज सीन. और ह्यूमन बीइंग ऐसे हैं, किसी भी समय ह्यूमन नेचर चेंज हो सकता है, किसी भी समय किसी भी सर्कमस्टांसिस में ह्यूमन नेचर चेंज हो सकता है, कोई इसमें स्टैम्प नहीं है. उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रहना है. अगर मुझे कोई रिलेशनशिप में जाना है, कोई जॉब में जाना है, मुझे प्रिपेयर्ड होना है कि कोई अनफेवरेबल सिचुएशन में मैं कैसे रिएक्ट करूं. तो उसका कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए. मेरा तो ये लाइफ का गोल है, मेरे लाइफ का एवरी कंट्रोल हैज़ टू बी इन माई हैंड. मैं किसी को नहीं दे सकती हूँ, नॉट इवन माई पेरेंट्स. बिल्कुल. मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा कि हाउ जो लड़के होते हैं वो प्रिटेंड करते हैं पहले कि ओ मैं तो बहुत अच्छा हूँ और बाद में आपको वो बैकस्टैब कर देता है. वो आई थिंक मेरी एक दोस्त है, उसका जो बॉयफ्रेंड था, जब वो लोग पहले मिले थे तो ही वॉज रियली नाइस, वो सब में हेल्प करता था, उसको सब कुछ में हेल्प करता था, बट देयर वर छोटे छोटे साइंस जो बताते थे कि ये आदमी इज़ नॉट व्हाट ही सीम्स. फॉर एग्जाम्पल हम सारे बहुत लाइक डॉग लवर्स हैं, तो हम फीडिंग पे जाते हैं, सबको खिलाते हैं, ठीक है. तो अब ऐसा है कि हम मोहल्ले में निकलते हैं तो डॉगीज आ जाते हैं हमारे पास, हमें छूने लगता है. एंड आई नो दे आर डर्टी, बट हमारा क्या ही जाता है उनको छूने में. तो वो आदमी उसने बोला कि ये डर्टी है, तुम इसको छू के मुझे मत छूना, ये क्यों आ जाता है तुम्हारे पीछे. पर ऐसे ही छोटे छोटे साइंस होते हैं जिससे पता चलता है कि हाउ लाइक कैरेक्टर ऑफ अ मैन. तो बाद में आफ्टर डेटिंग फॉर 2 months उस आदमी ने उसको बोला कि तुम्हारे पास से मुझे प्रॉब्लम है तो मैं नहीं डेट करूँगा अब तुम्हें. तो तुम्हें पहले नहीं पता था क्या वो चीज़, जब तुमने डेट करना स्टार्ट करा था. तो पास तो सबका होता है, वो सोच के थोड़ी बैठेगी. तो या ये छोटे छोटे साइंस होते हैं जो वी शुड नॉट इग्नोर. लेकिन ये सब से ना वी हैव टू मेक आवरसेल्फ स्ट्रांग. वी शुड नॉट टेक इट एज अ हार्ट ब्रेक्स नहीं होना चाहिए. किसी को भी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस मत दो फॉर हुम यू आर जस्ट एन ऑप्शन. पर मुझे ऐसा लगता है मैम कि आप ना भी चाहो और अगर आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो लाइक 1 महीने या फिर 10 दिन भी, तो आप अटैच हो ही जाते हो. नहीं, अटैचमेंट इज डिफरेंट. Attachment is different, but obsession is something else. Or being emotionally so involved that if that person moves away, you fall apart. This is not attachment, this is obsession. मैम ये ना हम टाइम के साथ सीख पाते हैं. टाइम के साथ with maturity ये सीखने आता है. Why women are choosing to be alone? I feel हम बड़े हुए हैं अपनी मम्मी को, अपने दादी, इन लोगों को देखकर. इन्होंने अपना मेजर लाइफ किचन में ही निकाल दिया, मेजर लाइफ घर को संभालने में निकाल दिया. और अब हम घर पे जो लोग काम करते हैं उनको हम उतने रिस्पेक्ट से नहीं देखते. वी सी दीज थिंग्स एज अ ट्रैप. और अब लड़कियां अकेले मोस्टली इसलिए रहना चाहती है बिकॉज वो किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती.
वो किसी इंसान की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, वो एक सेंस ऑफ सेल्फ, एक सेंस ऑफ बीइंग एबल टू डू एनीथिंग, वो वाली चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहती है जो हमने अपनी मम्मी में, अपनी दादी में या अपने अराउंड जितनी भी औरतें हैं उनमें नहीं देखी, क्योंकि एक रिस्पेक्ट उनको नहीं मिली। तो हमको भी कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हम उस सेम चीज़ को मतलब बीइंग अ हाउसवाइफ इज़ नॉट अ बैड थिंग एज इट्स शोन या जितनी हमें लगती है, बट वी सी इट एज अ ट्रैप, क्योंकि हमने जितना वो काम करती है, जितना सैक्रिफाइस करते हैं, मैंने कभी किसी ऐसी औरत की रिस्पेक्ट होती हुई उतनी नहीं देखी। सो वी कम फ्रॉम अ पॉइंट जहाँ पे हम अकेले इसलिए रहना चाहते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मैन, एनी चाइल्ड, एनीवन। हम एक फ्रीडम के साथ खुद को देखना चाहते हैं क्योंकि हमने हमेशा उनको ट्रैप में देखा है। I agree with it. You know, this is a, if we are very honest with ourselves, some of us may be like that. We don't want to go into any complications. We don't want to take any responsibilities. That is very true. I won't say for all of us, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये है शॉर्टकट हम करते हैं। मे बी बहुत लोग इसको सेल्फिश भी बोलेंगे कि हम किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन इसी को अगर हम दूसरे एंगल से हम देखते हैं, आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, हम देर बहुत तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, मैं भी इफ़ अगर मुझे कोई बोले कि आप किसी का केयर करो, केयर इन द सेंस, अगेन केयर हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। हो सकता है मैं हाथ पैर नहीं दबा, मेरा उतना पेशेंस नहीं है, सही में ऑनेस्टली आई कैन स्पीक हियर, मेरा उतना पेशेंस नहीं है, लेकिन दूसरे वे से सपोर्ट मैं कर सकती हूँ। सिंस आई एम फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, उनको हम फिनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक, ऑल्दो लोग इसको बोलते हैं कि नहीं वो तो सेल्फिश हैं, many women are characterized as selfish हैं, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती हैं, लेकिन ऐसे women जो अपने पैर पे खड़ी हुई हैं, वो एक फैमिली को, उसके अपने भाई बहन सबको वो ऊपर लेके आए हैं। वो मेरी अपनी एक फ्रेंड है, शी वेंट टू यूएसए, शी इज़ अ डॉक्टर, शी वेंट टू यूएसए, शी डजंट हैव एनी ब्रदर्स। ग्रेजुअली उनके 3 और बहन थे, तीनों को शी सपोर्टेड एंड द होल फैमिली इज, दे हैव बीन अपलिफ्टेड, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड। तो ये भी एक सपोर्ट करना हुआ। सपोर्ट करने का, केयर करने का मतलब हमेशा नहीं है हाथ पैर दबाना। सो देयर आर मेनी वे यू कैन सपोर्ट। Yeah, I want to add that whenever someone asks me to get married, I ask them that what benefit will it bring me, which I don't already have. Plus, I will be robbed of my freedom and I'll be responsible for way more than I am right now. I am responsible for myself 100% right now. And I am responsible, as you said, for my brother and my father. Yes. But I don't want to कि मैं कहीं पे अपना पार्टिसिपेशन कर रही हूँ एंड वहाँ पे उतना रिस्पेक्ट नहीं है, बिकॉज एज यू सेड हाउस वाइफ्स को ट्रैप इसलिए देखा जाता है बिकॉज वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता। जो ब्रेड विनर है, जो अर्नर है, उसको वो रिस्पेक्ट दिया जाता है, उससे पहला पूछा जाता है कि आज क्या बनेगा खाने में, आपको क्या खाना है। बट ये हमने देखा है ऑल थ्रू आउट आवर लाइव्स। Yeah, that is very sad. Yeah. I would like to add something that in a household, अगर both the partners are respecting each other enough, तो वो household वैसे भी काफ़ी inclusive हो जाता है, friendly हो जाता है. Like if your father respects your mother, then the kids will also respect your mother. Because मेरी मम्मी is like the matriarch of my family. हम सब उनके लिए खाना बनाते हैं, हम सब उनके लिए काम करते हैं. Because my father respects her so much, and that is why we are able to respect her so much. जैसे मान ली कोई मेरी लाइक कोई देख रहा होगा ये, लाइक कोई भी लेडी जो हमारी इतने प्रिविलेज नहीं है कि आके किसी से कॉन्वर्जेशन कर सके, आप जैसे इंसान से कॉन्वर्जेशन कर सके, और उसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि उसके माँ बाप उससे बोल रहे हैं कि अब तुम्हारी एज निकल गई है शादी करने की, अब तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी शादी, और उसको चूज़ करना है अपने करियर के बीच में, अपनी शादी के बीच में, माँ बाप के बीच में। तो वो क्या करे उस टाइम पे, वो कैसे अपने माँ बाप को कन्विंस करे कि मुझे ये करना है, वो कैसे नेविगेट करेगी वो इस चीज़ को। Again, where I every time say the confidence within yourself. मैं जमशेदपुर की हूँ, छोटा सा, उस समय छोटा सा शहर था, कोई नाम भी नहीं जानता था।
आई एम वॉज रेज्ड इन अ जॉइंट फैमिली, और छोटा सा घर में बहुत हम लोग आई कैन से लोअर मिडिल क्लास फैमिली के थे। हम लोग मेरे फादर 4 ब्रदर्स, उनके बच्चे सब, हम लोग साथ में रहते थे छोटा सा घर में। हम लोग थे 7 बहन 9 भाई, हम लोग साथ में रहते थे। एंड हम लोग कंजर्वेटिव फैमिली के थे, मतलब हमारे गर्ल्स में, बहन में मैं पहली लड़की हूँ जो कि स्कूल से बाहर पढ़ी है। कैन यू इमेजिन दैट? और मेरे बाकी सब बहन लोग, मेरे आई एम द 5th वन अमंग माई सिस्टर्स। मेरे बाद जो 2 बहन हैं वो लोग बिकॉज आई लेड द वे वो किए, लेकिन बाकी सब कोई 17, 18, 19 में सबकी शादी हो गई है। मेरे ऊपर प्रेशर था, मेरे भाई लोग भी सब ग्रेजुएशन तक है, उससे ज़्यादा कोई पढ़ाई नहीं किया है। एक आई वोंट से पर्दा सिस्टम, लेकिन बाहर जाना मना था, गर्ल्स बाहर नहीं जा सकती है अकेले। बंगाली फैमिली में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम लोग थे ऐसे। लेकिन वहाँ पे आई जस्ट हेल्ड टू माई दैट, नहीं, अगर किसी को शादी, प्रेशर था कि तुम्हारी छोटी बहन का तुमसे पहले शादी हो जाएगा, और एक लुक्स पर का भी था। मेरे घर में एवरीबडी इज़ वेरी फेयर, वेरी गुड लुकिंग, तो वो भी प्रेशर था कि तुम्हारा तो नहीं है, बाकी सब कोई। नो, देन यू हैवंट सीन माय अदर सिस्टर। तो वो भी प्रेशर था कि उन लोग सबका शादी हो जाएगा। देन आई थॉट टू माई सेल्फ, जो बात कर रही, ब्यूटी के बारे में बात कर रहे थे, यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंस तुम्हारा अगर है, नो person, no force on earth can destroy you. I said, अब जिसको जो होना है, जिसको शादी करना है करे. Now I speak, but that time I was a different person. I could not speak so much. किसी के ऊपर में बात करे, चुपचाप थे, रो देते थे. But this much everybody understood कि शादी नहीं करना है. मेरी छोटी बहन का शादी पहले हो गया था, उसके बच्चे मेरे से पहले हो गए थे. But I held on. So what I mean to say is that कहीं पे भी हो, अगर you'll have to say कि मुझे क्या चाहिए. अगर मैं नहीं बोलती क्या चाहिए, लोगों को कैसे पता लगेगा? हम दूसरे की ओपिनियन नहीं चेंज कर सकते हैं, दूसरे का रिस्पॉन्स नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपना तो चेंज कर सकते हैं ना. So this is, I'm talking to you about my own experience. So being rebellious about your needs is very important. I was not rebellious. Very quietly, बस I stood my stand कि नहीं करना है. I think it's less about rebellion and more about knowing what you want Yes. and be affirmative about Yes, it. yes, that is the right thing. मैं ये because मुझे चाहिए. if you don't choose anything for yourself, someone else will do it for you. Absolutely. So you have to Absolutely. know it and then do it. Absolutely. Priya, when you were talking about, you remember when we were talking in the cab about the thing, how you have to be polite to someone to get your point across. Everything is circling back to that question. Exactly. Yeah, you have to be very I don't gentle, think ki polite. anyone is illogical. People are super logical if you just put your logic in front of them and very politely, because sometimes it can hurt their egos. Yeah. So and then without it becomes a hurting, double stress on you. अब उसको उसके ego को भी अब so संभालो अब. very politely, and to do that you'll have to know yourself, and that's why I emphasize it again and again that you have to like come in terms with what your insecurities are and get above that. Yeah. I always think everybody should know, ask themselves, where do I want to see myself in 10 years' time? And that should be the aim, and proceed. तो मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि मान लो कोई लड़की है और उसने अभी अपना 10th का बोर्ड्स दे दिया है, ठीक है. अब वो सोचिए उसको करना क्या है, और उसके पास तो 4 ही ऑप्शंस है, डॉक्टर बन जाए, तो इंजीनियर बन जाए, लॉयर बन जाए, ऐसा कुछ, ठीक है. तो वो क्या कर सकती है इस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए कि उसको करना क्या है, अगर कुछ हट के भी करना है तो कैसे करना है, ये क्वेश्चन. So again, मेरा वही है, look at yourself, अपने आप को 5 साल के बाद मैं कहाँ देखना चाहती हूँ, किस पर, जस्ट इमेजिन 5 साल बाद मैं अपने आप को कैसे देखना चाहती हूँ. मैं अपने को बहुत रिच देखना चाहती हूँ, मैं अपने आप को एक कोई इंस्टीट्यूट के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में देखना चाहती हूँ, और या जस्ट
खुश देखना चाहती हूँ कि मेरे पास सब चीज़ है, हर रोज़ के काम के लिए मैं खुश देखना चाहती हूँ, इस तरह के। आपने कैसे डिसाइड करा था जब आपने 10th करा था? आपके टाइम पे क्या हुआ था? मेरा ये डिफरेंट था, मेरे को डॉक्टर बनना था। अच्छा, आप तो श्योर थे। My father, again, my father also belonged to a very poor family. He got into medicine और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की थी, लेकिन उस समय वो अपना फैमिली चलाने के लिए काम भी करते थे, जॉब करते थे। उस समय वो मना था, उस समय की बात है। तो मेरे फादर को के बारे में किसी ने कंप्लेन कर दिया कि ये जॉब भी करता है पढ़ाई करते करते। तो जैसे ही हो गया तब वो फाइनल ईयर में थे एमबीबीएस में, और उनके पास बस ही वॉज गुड इन स्टडीज़, इसलिए उनके पास ऑप्शन दिया गया कि आइदर आप एमबीबीएस कंप्लीट करो और अपना जॉब छोड़ दो, और नहीं तो एमबीबीएस छोड़ दो। तो उस समय दोनों रीज़न हो सकता है, ही लेफ्ट एमबीबीएस। उस समय उनको लगा कि दो रीज़न है, मैं अभी दूर से ये लगता है। एक है कि हीट ऑफ द मोमेंट में, ईगो में लगा कि चलो मेरे को नहीं चाहिए एमबीबीएस, मुझे तो अपना फैमिली देखना है। लेकिन एट द सेम टाइम एक नीड भी था, उनका बड़ा फैमिली था, ही वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर, तो वो भी है कि उनकी नीड थी, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो उन्होंने कभी बताया नहीं था, लेकिन मुझे पता था उनका एक रिग्रेट ज़िंदगी भर था वो। तो इसलिए मेरे को तो डॉक्टर बनना था, उसमें कोई दोहराए नहीं था। लेकिन मेरा एम इतना ही था, बिकॉज मेरे फादर के पास एक साइकिल था, तो हम ड्रीम क्या करते हैं, जो हमें नहीं मिला उसके ऊपर का, उससे बहुत ऊपर का नहीं चाहिए। तो मेरा यही ड्रीम था कि मुझे एक साइकिल चाहिए और एक टिस्को का बहुत अच्छा बंगलोज मिलता था डॉक्टर्स को, वो चाहिए। बस मेरा इतना ही था, छोटी सी ड्रीम थी। लेकिन उसके बाद एज यू वर्क, यहीं पे आता है हाउ यू सिलेक्ट। अगर अपने जो भी लाइन लिए हो, यू आर टॉकिंग अबाउट सिलेक्टिंग, तो जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे हम देखना चाहते हैं, इमेजिन करना चाहते हैं कि मैं तो यही काम में अपने आप को देखना चाहती हूँ, जस्ट फॉलो दैट विथ ऑल पैशन। एंड ये होता है ना कि व्हेन यू फॉलो समथिंग विथ कन्विक्शन, ऑल स्टार्स दे अलाइन टू सी दैट यू आर डूइंग दैट। तो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड लक, यू वर्क हार्ड, लक अपने आप साथ में आता है। जैसे आपने सिलेक्शन के बारे में बताया, कोई बच्चा या कोई लड़की कैसे चूज़ करेगी जब उसके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, बहुत सारी डायरेक्शंस हैं। जैसे मेरा मन करता है मैं हर कुछ टाइम में कुछ नया करूँ, हर कुछ टाइम में कुछ नया करूँ। सो हाउ टू फाइंड योर कॉलिंग? नहीं, आई थिंक ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ एक ही चीज़ करो। आजकल तो इतने ऑप्शंस है, सोशल मीडिया है और हमारे पास इतने ऑप्शंस है, इतने प्लेटफॉर्म्स है, तो आप एक क्यों, यू कैन डू 3 थिंग्स एट द सेम टाइम। इट ऑल डिपेंड्स कि मेरा कैलिबर क्या है। मेरे फादर बोलते थे भगवान सबको 24 घंटा देते हैं, उसी 24 घंटा को कैसे हम बांट रहे हैं, दैट इज़ अप टू मी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक ही करियर है, एक ही फॉलो करना है। 2-3 हम कर ही सकते हैं, आजकल तो टाइम है हमारे पास। जैसे जो बात कर रहे थे, 24 घंटा है, उसको आप कैसे डिवाइड करते हो। देयर आर पीपल हु विल बी स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स एंड वर्क फॉर 14 आवर्स। देयर आर अदर्स जो 5 घंटा सोएंगे, बाकी समय वो अपना काम में डिवाइड कर लेंगे। दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और आई थिंक अगर वंस अगेन पैशन रहे अगर, तो आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि दिस विल बी माई प्राइमरी, because this is giving me financial stability. Others are my passion. Jैसे for me, my oncology is my passion. It is also giving me financial stability. It is also meeting my career goals. लेकिन मेरा और भी interests है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। Traveling is my one of the passions. So I do travel. Gym, health. So that is my passion, वो भी है। For others it may be career options, like कोई painter होते हैं, there are कोई artist होते हैं, so they can be career options also. तो आप दोनों तीनों काम साथ में कर सकते हो। It's all आप अपने टाइम को कैसे डिवाइड करोगे एंड अपनी एनर्जी को कैसे डिवाइड करोगे। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी इकागाई के बारे में। एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है और ये कहता है कि हमें वी शुड डू pursue a profession if it follows these 3-4 things. First is if you love it,
Second is, does it make money? Third is, if the society needs it. And fourth is, if you're passionate about it. अगर ये सारी चार चीज़ें अगर फॉलो हो रही है तो दैट्स वेरी गुड. अगर आपको प्यार है उस चीज़ से और आप पैशनेट हो, इट कैन मेक यू मनी, फाइनेंशियली स्टेबल भी आपको कर देगा, एंड आप सोसाइटी को भी प्रोवाइड कर रहे हो. सो आई फील दिस इज़ वन ऑफ द वे यू कैन चूज़. तो अगर तुम्हारा आपका जो वो है प्रोफेशन है जो आपने चूज़ करा है, आपको पैसा वैसा सब प्रोवाइड करा है, ठीक है, बट यू डोंट लव इट, इट ड्रेन्स यू, तो उस मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए? It might sound radical because you have to like pursue it for all your life. उसमें ही आपको प्रोग्रेस करना होगा, तो चूज समथिंग विच यू एटलीस्ट लव. तो मैम मेरा इसमें एक क्वेश्चन है कि देयर आर सो मैनी थिंग्स, लाइक हमारा करियर भी चल रहा होता है, पर्सनल लाइफ भी होती है, और इस टाइम में हमें बहुत ज़्यादा ऐसे होता है, फिटनेस का भी होता है, एंड हमने ये पढ़ा भी होता है, कहीं ना कहीं भी हम वीडियो सुन रहे होते हैं और ये, बट ये चीज़ें इतनी बर्निंग आउट हो जाती है हमारे लिए कि हमारे ऊपर एक मेंटल प्रेशर आ जाता है कि लाइक क्या करें क्या नहीं करें, तो उसको कैसे डील करें? वेरी राइट, क्योंकि हमारा लाइफ ऐसा है आजकल कि हम बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं लाइफ में, एंड नॉट ओनली इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, ज़रूरी है. जैसे कि आजकल हमारा जॉब मोस्टली सेडेंटरी है, एक जगह में बैठ के काम है, तो ऑब्वियसली हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत है. सो यू विल हैव टू इनकॉर्पोरेट जिम और डांसिंग, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज विच यू लाइक, एवरीवेयर व्हाट यू लाइक. क्योंकि अगर आप वो पसंद नहीं करते हैं, आप उसको ज़्यादा देर तक आप नहीं कर सकते हैं. 2-3 दिन मेरे को लगा कि हाँ जिम मेरे को अच्छा लगता है, बट इफ़ यू डोंट लाइक जिम हर रोज़ नहीं जा सकते हैं. लेकिन अगर अच्छा लगता है यू विल फाइंड टाइम फॉर दैट. तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है. और दूसरा है कि हमारा पर्सनल लाइफ. हाँ, यस. सो जब हम कोई जॉब में हैं, हमारा लाइफ धीरे धीरे एज वी ग्रो इंट्रिकेट होने लगता है, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट उस समय अपना, इफ़ यू नो डू सम इंट्रोस्पेक्शन, देन यू विल रियलाइज हमारा जितना स्ट्रेस है, दे आर नॉट बिकॉज ऑफ द वर्क, बट बिकॉज ऑफ वॉट वी थिंक अदर्स आर थिंकिंग अबाउट अस. एक है कि कोई मेरा कलीग मेरे से आगे बढ़ गया, FOMO, which we talk so much about, feeling of not being there, feeling of being missed out, या how people are thinking about me, हमें उसके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस होता है. बट इफ़ यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट, जस्ट बिलीव कि जो मेरा काम है, what is my goal, that I like it or not. If I love it, that is my goal, and that is where मेरे को आगे बढ़ना है. अगर हमें लगता है मुझे फिटनेस ज़रूरी है, तो मैं उसके लिए टाइम निकालूंगी. हमारा एम होना चाहिए दूसरे से आगे नहीं बढ़े. दूसरे ठीक है अगर आगे बढ़ रहे हैं, इट्स ओके, ये उनका फील्ड है, उनकी स्ट्रगल है, उनकी एम्बिशन है. माई एम विल बी दैट आई शुड बी, मैं कल जो थी मैं उससे आज बेहतर हूँ, कल मैं उससे बेहतर रहूँगी. I can tell you this is with my own personal experience. If you stop thinking कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरा एम इतना नहीं हो पाया, लोग क्या सोच रहे होंगे, अगर आप अभी बिकॉज यू ऑल आर यंग, अभी थोड़ा समय लगे, मे बी अनदर 10 years, तो तब आपको लगेगा कि दिस मीन नथिंग एट ऑल. एट द एंड ऑफ द डे मेरा क्या हमने अचीव किया विच सेटिस्फाइज मी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और सबको एक साथ करना, टू कोलैबोरेट ऑल एवरीथिंग यू वांट, दैट इज़ अगेन योर पर्सनल स्किल. अगेन आई विल टेल यू वन स्टोरी. जब मैं 12th में थी, द क्वेश्चन यू आर आस्किंग कि क्या करे, तो उस समय 12th में आई वॉज अ डांसर ऑल्सो. तो स्कूल में जब भी कोई आते थे तो डांस, मैं और मेरी सिस्टर, हम लोग दोनों को बुलाया जाता था डांसिंग के लिए. तो आई वॉज इन 12th, बस 2-3 महीना था हमारा 12th ISC बोर्ड के लिए. उस समय कुछ आए थे, बड़े लोग आए थे, तो हमें बुलाया गया डांस के लिए. माई फादर मदर दे गॉट वेरी एंग्री. अब बोर्ड का एग्ज़ाम है, अब तुम्हें डांस करना है. तो माई फादर टुक मी to my principal. My principal was somebody I learnt a lot from him. I still revere him a lot. So he made us sit properly. कुछ नहीं बोले. My father said everything. He said कि मुझे पूछे कि आप क्या करना चाहते हो, what do you want to be?
आई वाज वेरी क्लियर, आई सेड कि मुझे तो डॉक्टर बनना है. तो ही सेड कि हैव यू एवर थॉट डॉक्टर का लाइफ क्या होता है, हैव यू थॉट कि कैसे मैनेज करना है. आप डॉक्टर बन जाओगे, आपके पास ओपीडी में पेशेंट रहेगा, उसी समय इमरजेंसी से कॉल आएगा कि आपको पेशेंट देखना है, ही इज़ इम्पॉर्टेंट. उसी समय कॉल आएगा कोई कहीं पे साइन करना है, या आईसीयू में कोई पेशेंट है, आप अकेले हो. हाउ विल यू डू दैट? आपको डॉक्टर बनना है, आप सोचे हो कभी कि ये सब कैसे करोगे? So I said that ki no sir, I haven't. But it came in very involuntary. I said ki sir, I will go to the emergency first. So he said that ki see, this is prioritizing. So every time you will get opportunities, every time you will have responsibilities in your family also. आपका career है और साथ में घर में responsibility है. हो सकता है घर में कोई बोले कि नहीं आज तुम हॉस्पिटल मत जाओ या काम में मत जाओ, घर में ये काम है. मेंटल प्रेशर होगा कि नहीं ये घर में देखती नहीं है. सो इमीडिएटली एट एवरी पॉइंट यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि ये मेरा इस समय दिस इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, नॉट फॉर अदर्स. सो आई थिंक दैट प्रायोरिटाइजिंग, इफ यू लर्न दैट and not comparing yourself to others, these two things, I think you'll be absolutely stress free and you'll enjoy. मैम कोई ऐसा वे है जिससे हम ये चीज़ सीख पाएँ, या कुछ ऐसा मतलब जो इजीली सामने वाले को या हमारे गर्ल्स को बता पाए कि ओके नाउ ऐसे प्रायोरिटाइजिंग आपको करनी चाहिए? It is asking yourself. हमेशा you don't get help from others. कभी हमें लगता है कि फ्रेंड कोई हेल्प कर देंगे, कि कोई they can guide, लेकिन डिसीजन तो खुद करना है. सो दैट डिसीजन मेकिंग स्किल इज़ व्हाट अपने आप को डेवलप करना है. बहुत समय ऐसे सिचुएशन आता है, 4-5 लोग सब कोई नोबडी इज योर एनिमी, सब कोई अपने हिसाब से बोलेंगे कि नहीं आप ये करो, आप ये करो. योर फादर विल से समथिंग, योर हस्बैंड विल से समथिंग, योर कलीग विल से समथिंग, योर बॉस विल से समथिंग, लेकिन डिसीजन तो हमें ही करना है. So वो decision is always what I feel is within yourself. You'll have to sit in the quiet and decide what you'll have to do. And I think that is where you get the best answer. As soon as you start depending कि दूसरे लोग हमें क्या बोलेंगे, मैं तो वही करूँगी, वो शायद सही बता रहे हैं, but that is not actually true. For me, I have always made decisions myself. I have never taken there was a time, I had to change job for some reason which I did not want to. It was a forcible change of job. It was a shock for me. But nobody in my family knew that I was going through a stress. And nobody knew I was in the decision making कि अब क्या करे. But what I learned is that बस अपने आप बैठो, सोचो. Your mind should be very clear. Get a diary, write. This is my priorities. Diary writing is very important, and this is what is important for me. This is first, second, third, fourth, and that gives the most clear answer. So I think that all women at least will have to learn that. I think one should fall in love with everything they do. So that's how you like. This art of falling in love with everything you do is something everyone needs to inculcate. Absolutely, yeah. Because most of the time, 50% of our lives, we are either in the past or in the future. We are worrying about the past and imagining worst kind of futures, which will never even happen. But we always fail to stay in the present moment. Yes. And we always, when we are doing something, we are thinking about, okay, this is I'm missing. So first take a hold on what you're doing and you will fall in love, and then you will not even think about the other things. Yeah, exactly. तो मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, बिकॉज आप एक टीचर हो जो अपने पैशन की वजह से इस फील्ड में है, नॉट बिकॉज इट्स द सेफेस्ट ऑप्शन. बट इंडिया में अभी भी बहुत सारे लाइक रूरल एरियाज़ में, जैसे जहाँ से मैं आती हूँ, बिहार से आती हूँ, तो मेरे घर पे भी इट्स लाइक वेरी नॉर्मल कि सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है लड़की है तो टीचर बन जा, क्योंकि सबसे सेफ ऑप्शन है, तेरे को पता नहीं है अभी क्या करना है लाइफ में, ठीक है. तो उस चीज़ इस एंड लाइक आप जब चूज़ कर लेते हो सेफेस्ट ऑप्शन, तो लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाती है. तो उस चीज़ को नेविगेट करने के लिए आप क्या एडवाइस दोगे टू पीपल इन जनरल? Okay. Frankly speaking,
I was never wanted to be a teacher. Yeah. बचपन से जो मैं करना चाहती थी, मैं इवन पढ़ाई भी नहीं करना चाहती थी, मैं शादी करना चाहती थी। ये बहुत ऑनेस्ट है। बट जैसे मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, हाँ जी। तो मेरे घर के सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे थे, कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस थी कि मुझे जॉब चाहिए था और मेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं थी। मैंने सिंपल एमएससी फिज़िक्स किया हुआ था, तो कोई टेक्निकल डिग्री नहीं थी मेरे पास। बट उस टाइम में हमको एमएससी के बेसिस पर टीचिंग जॉब मिल सकता था इन द इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस। तो बस एक यही अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी, तो मैंने इसको ग्रैब किया और आई स्टार्टेड टीचिंग इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो धीरे धीरे तो मैंने लाइफ में कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं टीचिंग करूँगी, बिकॉज मुझको हमेशा से ना स्टेज फियर रहा है एंड आई वॉज वेरी शाई काइंड ऑफ अ गर्ल। तो फिर जब मैं टीचिंग में आ गई, धीरे धीरे आई लाइक टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स और मुझे वो लाइफ अच्छी लगने लगी। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या था कि मैं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रही थी, मैं सिर्फ फिज़िक्स पढ़ा रही थी। एक ही सब्जेक्ट मुझे पहले जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ाती थी तो एक साल में मुझे रिपीट करना पड़ता था। बट व्हेन आई जॉइन अदर इंस्टीट्यूशंस, मुझे एक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट दे दिया गया विच वाज लेज़र सिस्टम्स, जो कि फिज़िक्स में ही आता है, साइंस बेस्ड ओपन इलेक्टिव। तो वहाँ पर मुझे 6 मंथ्स में वो सिलेबस रिपीट करना होता था और एक दिन में शायद मुझे 5 बार वो वही एक चीज़ पढ़ानी होती थी। तो ये मेरे लिए बहुत बोरिंग था। फिर भी मैंने उसमें किया, मैं आगे चलती गई। लेकिन एक टाइम के बाद मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, मैं कर रही हूँ, अर्निंग भी हो रही है, लेकिन अब क्या क्या ऐसे ही लाइफ चलेगी? क्योंकि टीचर मैं कभी बनना नहीं चाहती थी, बट हाँ, मुझे लगा कि अर्निंग हो रही है, मेरा काम चल रहा है, तो ठीक है, मैं कर रही थी। बट उसके बाद जब मुझे लगा कि कुछ और करना है लाइफ में, पता नहीं क्या करना है, लेकिन साइंस थोड़ा सा बोरिंग लगने लगी है, स्विच करना है मुझे फील्ड को, कुछ और पढ़ना है अब। ये बहुत ही बिजार है हाँ। कमिंग फ्रॉम अ फिजिक्स टीचर पर फन है। हाँ जी। तो मैंने सोचा कि अब पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ा जाए? हाँ। तो कोई भी एक स्ट्रीम अगर मैं ऐसे चूज़ करती तो शायद मैं एक ही फील्ड को थोड़ा सा जान पाती। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद मैंने क्या सोचा कि मैं एजुकेशन स्ट्रीम ज्वाइन करती हूँ। बिकॉज एजुकेशन में आप सोशोलॉजी पढ़ते हो, आप फ़िलॉसफी पढ़ते हो, आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, आप टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, आप रिसर्च पढ़ते हो ऑब्वियसली, है ना? तो वो मैंने चूज़ किया। और एक और मेजर रीज़न था इसको चूज़ करने का, वो ये भी था कि बचपन से मुझे ये जो ऐसे सब्जेक्ट्स होते थे, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और सोशोलॉजी एंड ऑल, इससे बहुत डर लगता था। तो फिर मैंने सोचा चलो अपने फियर को ओवरकम करना है, तो वही चूज़ करना है। या जैसे उन्होंने बोला था। तो हाँ, दिस वे आई डिसाइडेड टू गो विद द एजुकेशन डिसिप्लिन। और जब मैंने ये कंप्लीट किया, मैंने अपना एमएड कंप्लीट किया, तो अब मेरे पास एक और चैलेंज था सामने। अब मुझे दोबारा से जॉब सर्च करना था, बिकॉज आई लेफ्ट दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम फिजिक्स, आई केम इनटू द एजुकेशन डिसिप्लिन। फिर एक और चैलेंज सामने खड़ा हुआ था कि अब मुझे फिर से जॉब सर्च करनी है, और अगर स्ट्रीम स्विच किया है तो वो जो मेरा लास्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो तो बिल्कुल ख़त्म है, ज़ीरो है। तो इस चैलेंज, ये जो सामने खड़ा था, अब जॉब सर्च कर रहे थे, लेकिन उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में जॉब मिलना, बीइंग अ फ्रेशर इन दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट नाउअडेज। तो उसके लिए फिर अब सर्वाइवल चाहिए था, सर्वाइवल मोड में मैं थी, सर्वाइव करना था। तो आई स्टार्टेड डूइंग अदर थिंग्स लाइक आई डिड मॉडलिंग एंड आई हैव बीन इनटू रियलिटी एस्टेट सेक्टर फॉर सम टाइम। मैंने BPOs में भी वर्क किया, एंड देन फाइनली इन 2024 आई गॉट द जॉब एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन डिसिप्लिन। सो इस तरीके से मैंने उस सेक्टर में मैं आई। लेकिन इस बीच में जो हुआ, जो मैंने डिफरेंट एरियाज़ को चूज़ किया, एक्चुअली जब मैंने आपको बोला कि मैं पहले कभी टीचर नहीं बनना चाहती थी, तो ये सारे जो एरियाज़ थे डिफरेंट, जैसे कि खासकर मॉडलिंग हो गया, ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग एरिया लगता था, बहुत इंटरेस्टेड थी। आई वॉज वेरी फिल्मी।
तो मैंने उस एरिया में भी काम किया, लेकिन जब मैंने काम किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि एक हॉबी की तरह मुझे ये अच्छा लगता है, लेकिन प्रोफेशन के लिए ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं इसको कर ही नहीं पाऊंगी। ड्रूलिंग होती है बहुत मॉडल्स एग्जैक्टली की लाइफ। बाकी अदर जैसे सेक्टर्स में रियल एस्टेट की बात कर रही थी, मेरे पापा जो थे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करते थे, प्राइवेट सेक्टर में। तो उस वक्त जब मैं छोटी थी उनको देखती थी, मुझे लगता था इनका काम बहुत अच्छा है, इनको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जाना होता है, इतना ट्रैवल होता है, सब कुछ इतना कुछ घूमने के लिए मिलता है। तो जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया रियल एस्टेट में, शुरुआत में मुझे अच्छा लगा, अच्छी अच्छी पार्टीज़ हो रही हैं, आपको ट्रिप पर जाने के लिए भी मिल रहा है, लेकिन मुझे लगा इसमें आप काम क्या कर रहे हो, एक सेल्समैन का काम है आपका, आपको कोई भी पोजीशन दे दी जाए, करना तो आपको वही है। तो ये मुझे नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था एक ऐसा फील्ड जिसमें मुझे अथॉरिटी मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले। और आप फिर grow मुझे कर समझ सको। में आया कि मेरे लिए जो बेस्ट फील्ड है, जो मैं पूरे मन से कर सकती हूँ, अच्छे से कर सकती हूँ, इट इज़ अ टीचिंग। तो डिफरेंट सेक्टर्स को ट्राई करने के बाद मैं फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंची कि मुझे टीचिंग ही करनी है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट हाँ। कुछ ट्राई करना। ऑल्दो मैं ये जानती हूँ कि उसमें उतनी अर्निंग नहीं है जो शायद बाकी सेक्टर्स में मुझे मिल सकती है, उतना पैसा मैं नहीं कमा सकती, लेकिन फिर भी मुझे यही करना है क्योंकि इसमें मुझे मज़ा आता है। तो जैसा कि मैम ने भी बोला, प्रिया ने भी बोला कि हमको ये चूज़ करना है कि हमें खुशी किस में मिल रही है, क्योंकि हमें वो लॉन्ग टर्म तक करना है। डू व्हाट डज नॉट ड्रेन यू। एग्जैक्टली। सो दिस वाज Thank you so ऑल माय much. स्टोरी। थैंक यू। दीपिका, आपको लगता है कि आप जो भी हैं, आपने अगर ये सब नहीं किया होता तो शायद आप यहाँ पे नहीं होते? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ट्राई करें, हमारे दिमाग में अगर कोई छोटी सी भी आइडिया आ रहा है ना, तो उसको भी हम फीड करें एंड उसका कुछ आउटकम निकलेगा ज़रूर। एग्जैक्टली। और मुझे एक और चीज़ लगती है कि जो भी आप चाहते हो ना, उसको ट्राई ज़रूर करो, वो करेज आपके अंदर होना चाहिए, नहीं है तो आपको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि And you अगर learn आप from नहीं your करोगे अपने लिए, experience. तो कोई और आपके लिए नहीं करेगा। तो डेवलप कैसे करें डेवलप कैसे करें? करेज? हाँ, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन एक्चुअली। Every time you choose yourself, whenever something gets tricky and there's a question between you and something else, you have to choose yourself. That is the first step. प्रिया ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है इसका। वन वर्ड। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन था मैम कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में नहीं थी बचपन से, ठीक है, और मुझे समझ भी नहीं आता था कैसे खेलना है। मैं बहुत मोटी थी, चबी थी बहुत। तो मेरे को बहुत सुनाया जाता था कि तू बाहर नहीं आती, खेलती नहीं है। और अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मेरे को रियलाइज़ होता है कि कितने सही थे वो, मुझे खेलना चाहिए था। बिकॉज अब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, लाइक वो कॉम्पिटिटिव फ्लेयर नहीं है जब भी मैं खेलती हूँ किसी के साथ। तो हाउ डू आई बिल्ड दैट इन माई सेल्फ कि मुझे खेलना है, मुझे जाना है, मुझे जिम करना है, मुझे कुछ करना है अपने फिजिकल हेल्थ के लिए, वो कैसे बिल्ड करना चाहिए अगर आप थोड़े एडल्ट हो गए हो तो? So शिवांगी, what you are saying is that I think मैं भी इसे बहुत रिलेट कर सकती हूँ। वांटेड टू प्ले लेकिन कभी खेल नहीं पाया, लेकिन सबसे अच्छा चीज़ जो इजी है करने के लिए, डांसिंग। कोई टीचर की ज़रूरत नहीं है, इतने यूट्यूब में है, अपने रूम में डांस करो। एंड डांसिंग से अपना एक इमोशंस का एक आउटलेट भी है वो। सो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, डांसिंग। रनिंग, अपने घर के रास्ते में, बालकनी में रनिंग, इजी। एंड स्विमिंग। स्विमिंग, आसपास में आजकल इतने स्विमिंग पूल्स है, और एवरी सोसाइटी सब में एक स्विमिंग पूल है। आई थिंक ये 3-4 से शुरू करो। हमेशा पहला स्टेप लेना डिफ़िकल्ट होता है। वंस यू टेक द फर्स्ट स्टेप, उसके बाद इजी हो जाता है, देन यू फाइंड द वे। आई थिंक इससे यूज स्टार्ट कर सकते हो। I like to go for long walks. या That is also सबके very लिए डिफरेंट बहुत होता अच्छा है। आउटलेट है। आप क्रिएटिविटी भी, अपना फ़ोन घर पे छोड़ो और लॉन्ग वॉक के लिए निकल जाओ। आप अच्छी सी जगह ढूंढो, सेफ हो जो आपके लिए। और मुझे क्या करना पसंद है, मुझे पसंद है कि मैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से बात करती हूँ चलते हुए। हाँ, क्या एवरी डे मेरा सेम रूट होता है, तो मैं सबसे अच्छा तुम आज भी यहीं पे ही हो, ऐसे करके इट्स वेरी फन। एंड एक और चीज़ होती है कलर वॉक, विच आई लव। कलर वॉक में आप एक कलर चूज़ कर लेते हो एंड देन आप वो हर अपने वॉक पे पॉइंट आउट करते हो कि यहाँ पे ये है रेड रेड रेड, एंड इट्स सो फन एंड इट विल नॉट गेट बोरिंग। यस, ये हम भी करते हैं कि कोई वर्ड ढूंढ लिया, अब इसको ढूंढो हर जगह जहाँ मिल जाएगा, तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। So I have a follow-up question.
जैसे अब मुझे पता है कि ठीक है, मेरे को फिजिकल हेल्थ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बट देर इज़ अ लैक ऑफ फाइंडिंग अ गुड इंस्ट्रक्टर, स्पेशली फॉर अ वुमन. मैं जिम जाती हूँ, इट बिकम्स वेरी इंटिमिडेटिंग, क्योंकि मेल ऑडियंस वहाँ पे ज़्यादा होती है, और इन जनरल किसी भी स्पोर्टी फील्ड में मेल डोमिनेंस ज़्यादा होती है. सो इसमें मैं एज अ वुमन खुद को नेविगेट कैसे कर सकती हूँ? आई थिंक जिम के बारे में आजकल गुड़गांव में ही विमेन जिम ओनली फॉर विमेन है. अभी 2-3 दिन पहले ही मैं एक जिम सर्च कर रही थी बिकॉज आई हैव चेंज्ड माय जिम. तो सर्च कर रही थी, एक जिम ओनली फॉर विमेन है और धीरे धीरे आ रहे हैं. और इसके अलावा जिम के इंस्ट्रक्टर्स भी हैं जिम में. सो आई एम गोइंग टू जिम सिंस अबाउट 11 ईयर्स. मैं रेगुलर जिम में जा रही हूँ. तो मेरे लिए आई थिंक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. इवन मेल्स रहते हैं, लेकिन आई थिंक जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो डिफरेंसेस नहीं है. जो भी कोई जिम में जाते हैं, दे सो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड and it gives you a different platform altogether. So I think the ambience of the gym is very different जो कि हम बाहर में देख रहे हैं. जो भी differences बाहर लगता है, इसमें personal feeling, जिम में वो feeling नहीं होती है. In fact, self absorption इतना ज़्यादा है that you stop comparing yourself to others. तो आई थिंक जिम आजकल एक बहुत अच्छी, एक नॉट ओनली फॉर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए भी जिम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. ऑफ कोर्स सबके लिए जिम नहीं हो सकता है. किसी के लिए लाइक शी सेड वॉकिंग, किसी के लिए रनिंग, किसी के लिए डांसिंग. और कौन सा बेस्ट है वो ऑफ कोर्स चूज़ करना डिफ़िकल्ट है. लेकिन आई थिंक कोई भी चीज़ चूज़ करने से पहले खुद जाके एक बार बात करना, देखना whether it is satisfying you or not, ये करना ज़रूरी है. और रिव्यूज़, आजकल रिव्यूज़ इतना इम्पॉर्टेंट है. आई थिंक रिव्यूज़ पढ़ते हो तो मोस्ट ऑफ देम आर जेन्युइन रिव्यूज़. तो आई थिंक दैट वे इट हेल्प्स यू. ऑल्सो जैसे हमारे अराउंड बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, टू चूज़ द राइट इंफॉर्मेशन, टू चूज़ मेरे लिए क्या सही है, वो सोर्सेज मैं कैसे ढूंढ सकती हूँ? एब्सोल्युटली. अगेन वेरी सिंपल आंसर. आजकल जैसे इतने सोशल मीडिया है, बस एवरीबडी बाय हिमसेल्फ इज़ एन यूनिवर्सिटी. वही शो होता है. हम लोग बोलते ही हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी. हमारे पेशेंट्स आते हैं सारा जानकारी लेकर, हम उन्हें बोलते हैं कहाँ से लिया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से. कहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से. सो एक्चुअली दैट इज़ नॉट द राइट वे. ठीक है, आप पढ़ो, लेकिन यू शुड नो कौन कौन सा नुकसान देता है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आर नॉट गुड. बेस्ट वे इज़ गूगल में फाइंड आउट, लाइक जो पबमेड जर्नल्स हैं, वेबसाइट ऑफ गुड यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस. देन देर आर दोज और विथ ORG, एड्यू, ये सारे जो वेबसाइट्स हैं, दे आर जेन्युइन and you will find authentic information. It is very important. Another responsibility I'd like to say, अगर आप WhatsApp में आपके friends कुछ ऐसे भेज रहे हैं, you must say, tell, raise your voice that just check the authenticity. Just don't spread any message. और हमेशा आपके सबके पास कोई ना डॉक्टर फ्रेंड्स होते हैं, डॉक्टर रिलेटिव्स होते हैं. लेकिन ये भी एक है कि सभी डॉक्टर्स को सब चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है. लेकिन एक जनरलाइज्ड, एक MD मेडिसिन, जो मेडिसिन फील्ड में है, उनको जनरली एक सारा चीज़ की जानकारी होगी. तो कोई मेडिसिन के डॉक्टर के से आप बात करो. अगर उनको जानकारी नहीं भी होगी, वो पता करके बताएंगे, ये तो डेफिनेटली है. तो ये सारे एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. मैम, मेरा क्वेश्चन था अबाउट सेल्फ इमेज. हम क्या गोल लेके चले टू बी हेल्दी? तो हमारे माइंड में क्या गोल रहना चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है इफ़ आई वांट टू बी हेल्दी मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली? तो क्या गोल है? हाँ, बॉडी इमेज एक्चुअली इज़ अ प्रॉब्लम, स्पेशली यंगर एज ग्रुप में. बॉडी इमेज, बॉडी शेमिंग, ये एक रियली प्रॉब्लम है. एंड इट इज़ नॉट ओनली प्रॉब्लम, इट इज़ वेरी traumatic for a person. It may be in the workplace, in the school, in the college, even at home.
ये रहता है. So one has to, again, you have to get out of it. गोल होना चाहिए फिटनेस. इन दी एंड फिटनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट गोल है. हमें फिट रहना है. और फिटनेस का मतलब क्या होता है कि एक फिज़िकल फिटनेस, एक मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस. फिज़िकल फिटनेस डजंट मीन ओनली मेरा वेट सही है, मेरा प्रोपोर्शन सही है. दैट इज़ नॉट ऑलवेज अ फिटनेस. इट शुड बी अ इलनेस फ्री बॉडी. Mental illness, physical illness free body, that is a healthy you. That should be the goal. आजकल हम इतना सुनते हैं जिम में very fit persons but they have an accidental death. ये इमेज, ये न्यूज़ बहुत बहुत कॉमन हो गया है. एंड सारे जितने हम एक्सीडेंटल डेथ्स देखते हैं, दे आर ऑल यंग फिट पीपल. What is the reason? We don't know yet the reason. So there must be something beyond this fitness. जो visible fitness, उसके beyond कुछ होता है. So I think our goal should be feeling fit, both emotionally and physically. आप अगर happy हैं, that means you are physically and mentally fit. और वो तभी हो सकता है when you are a healthy, like we always say, healthy mind lives in a healthy body. You must be knowing, you're a doctor, we always say that. Healthy mind lives in a healthy body. So that should be the goal. Ma'am, how can we fix our sleep? Sleep is very important. So we can fix how can we work So towards sleep, again, you know, if we go medically, 5 hours sleep is enough medically. हम लोग जब MBBS करते भी थे, हमें बोला जाता था 20 मिनट अगर स्लीप हो गया है, दैट मीन्स फाइन. नाइट ड्यूटी है, 2 दिन के लगातार ड्यूटी है, 20 मिनट्स अगर आपको नैप मिल गया, फाइन, गो बैक टू योर वर्क. तो एक्चुअली स्लीप, बट ऑफ कोर्स एट लीस्ट 5 to 6 hours ऑफ स्लीप चाहिए होता है. और वो तो मैनेज करना पड़ेगा. लाइक आई सेड, यू हैव, गॉड हैज़ गिवन यू 24 hours टाइम, उसी में हमें मैनेज करना है. सो 5 hours स्लीप कंटिन्यूअस विल बी बेटर. मे बी रात में वी हैव टू कट डाउन ऑन आवर स्क्रीन टाइम. हम जो सोने से पहले अपना स्क्रॉल करते रहते हैं, मैसेजेस एंड इंस्टा एंड फेसबुक, उसको हमें कट डाउन करना है. एंड यू मे हैव सम म्यूज़िक टू फॉल asleep. आजकल बहुत ऐप्स है जिसमें म्यूज़िक रहता है, साउंड्स रहता है. फॉलिंग रेन्स का साउंड है, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. फॉलिंग रेन्स का साउंड है एंड यू फॉल asleep. किसी किसी के लिए एक परफ्यूम होती है, होम सेंड, उसके लिए वो दैट हेल्प्स यू इन फॉल asleep. और नहीं तो कुछ भी नहीं, पढ़ाई के बुक्स लेके बैठ जाओ, नींद आ जाएगी. ओके मैम, जैसा कि आपने अभी बोला कि 5 hours स्लीप इज़ इनफ, लेकिन जैसे कि मैं पर्सनली बात करूं, एक तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं. Absolutely, yes. This is not a blanket, लाइक yes. मुझे लगता है अगर मैं 4 to 5 hours की स्लीप ले रही हूँ तो मेरा जो दिन जाएगा ना बहुत ही ख़राब जाता है. मैं किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट ठीक से नहीं कर पाती हूँ. आई नीड एटलीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप. तो ये मतलब कहाँ तक सही है? और दूसरा ये चीज़ कि मेल और फीमेल में अगर हम स्लीप की बात करते हैं तो कितना डिफरेंस रहता है? नहीं, ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है. इट इज़ एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट. सबकी बॉडी की नीड्स अलग होती है. तो एब्सोल्युटली किसी किसी को 8 घंटे की स्लीप की ज़रूरत होती है. अगेन 24 hours हैव बीन गिवन टू यू. इससे आपको निकालना है. राइट. सो इट बॉइल्स डाउन टू द सेम फैक्ट. और जैसा कि आपने एक और चीज़ अभी बात की कि बहुत सारे म्यूज़िक हमारे पास अवेलेबल हैं वो स्लीप के लिए. तो लेकिन मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब मैं कोई म्यूज़िक सुनती हूँ तो मुझे नींद चली जाती है. जितनी थोड़ी बहुत आ रही होती है वो भी चली जाती है. पढ़ाई का बुक्स ले लो. I think राइट टाइम ऑफ स्लीप और एक रेगुलर टाइम जो हम फिक्स कर देते हैं स्लीप के लिए, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. कि अराउंड 10:30 11 यू डिम द लाइट्स एंड यू You'll have to make an effort to fall यस asleep. द एम्बियंट ये एनवायरनमेंट आप बना लेंगे तो आपका ब्रेन को एक सिग्नल मिल जाएगा कि नाउ इट्स टाइम टू रेस्ट. Absolutely. अदरवाइज हम अगर स्क्रीन चलाते रहते हैं तो एक हमारा पीनियल ग्लैंड से कॉर्टिसोल भी रिलीज होता है. तो उसमें हमारा अलर्टनेस हाई रहता है. Yes, yes. तो वो हम नहीं कर सकते अफोर्ड. एंड वी मस्ट फिक्स आवर टाइम टू स्लीप. अपनी बॉडी को पता चल जाएगा. और अपनी बॉडी का एक डिवाइस होना चाहिए कि कैसे मुझे नींद आएगी. किसी किसी को वॉकिंग से आती है. एंड डोंट टेक एनी कॉफीज बिफोर स्लीप. नो कॉफी, टी बिफोर एक्चुअली स्लीप. कॉफी आफ्टर 3 PM इज नॉट Not recommended. recommended.
There is like a lot of misinformation on the internet when you talk about how, because I have trouble waking up a lot. So during मेरा जब एग्ज़ाम चल रहा था तो मेरे को ये एडवाइस करा गया था लाइक लोगों ने कि कॉफ़ी पी लो और फिर सो जाओ 15 मिनट, पावर नैप ले लो, फिर तुम उठ जाओगे। मैं कभी नहीं उठती थी। तो एक वो है मिसइन्फॉर्मेशन, गाइस डोंट Absolutely I not. want to add to this. There are many people जो मुझे बोलते हैं कि मैं तो कॉफ़ी पीता हूँ मुझे फिर भी नींद आ जाती है. अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आप addicted हो कॉफ़ी हाँ, से. हाँ, हाँ. So this is a sign to stop drinking coffee. Absolutely. Okay, ma'am, as you are talking about physical health, mental health, emotional health, तो यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगी, जैसे कि हम इमोशंस की बात करते हैं, तो इमोशंस में हमने कुछ कैटेगराइज कर दिया है, जैसे कि नेगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस. अब जब मैं बात करती हूँ नेगेटिव इमोशंस की, तो लाइक जैसे मैं प्रोफेशन में हूँ और मेरा कोई सीनियर या कोलीग आकर मुझसे कुछ अच्छे से बात नहीं करते, या फिर अगर मैं कुछ कर रही हूँ, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, तो इट हर्ट्स बेसिकली. तो कई बार जो हमारा फ्रस्ट्रेशन होता है वो हमारी वॉइस में रिफ्लेक्ट होता है, और कभी कभी अगर किसी ने कुछ बोल दिया है तो आप सडनली उस पर रिएक्ट करते हो, और वो जो नेगेटिव इमोशन है, जो आपका एंगर है, जो आपका गुस्सा है, वो उसमें रिफ्लेक्ट होता है. तो कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उनको रेगुलेट कर सकते हैं? आई थिंक एक तो बात है कि आई स्टिल फील अगर कोई इमोशंस आपके स्पॉन्टेनियसली आ रहे हैं, शुड नॉट फील अपोलोजेटिक अबाउट इट, बिकॉज दैट इज़ वेरी नेचुरल. इट इज़ अ वेंटिंग आउट. आई थिंक यू शुड नॉट फील अपोलोजेटिक अबाउट इट. ठीक है, बाद में जाके आप सॉरी बोल दो अगर लगा है कि नहीं मेरी बात से किसी को हर्ट हुआ है, जाके सॉरी बोल दो एंड आई एम श्योर द अदर पर्सन विल अंडरस्टैंड. लेकिन ऑफ कोर्स आई थिंक जब भी ऐसे कुछ तरह के इमोशंस आते हैं जो एज ओल्ड हमारे पास है, काउंट 10, तो जस्ट कूल डाउन, मे बी लीव दैट रूम, उस जगह से आप हट जाओ एंड काउंट 10. एंड दैट एक्चुअली उस जगह से हट जाने से योर सराउंडिंग चेंजेस और आपकी इमोशंस भी इमीडिएटली चेंज हो जाते हैं. मे बी गो आउट एंड लुक एट द ग्रीन. उसी से सपोज कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, जस्ट वॉक आउट एंड लुक एट ग्रीन. ग्रीन इज़ वेरी सूदिंग टू द आईज, और ये आपके बॉडी में भी हॉर्मोन्स पे ये इफ़ेक्ट करता है, एंड यू विल इमीडिएटली फाइंड द चेंज. You can keep, if you can't go out, keep some picture on your phone, which is of the greenery, nature. And it helps a lot. Then count 10 and immediately आपको लगेगा कि ये तो this is not important. But is it important, so important to react? So when you ask this question, then you will know the answer also. ठीक है, कोई I know it is very hurting. You have worked so hard and I don't get that recognition. ठीक है, I don't want any fame or for it, but at least I want the recognition. वो भी जब नहीं मिलता, it's hurting. Yes, it does hurt. लेकिन उस समय आप यही सोचो कि no, वो if she does not recognize me, that is not a certificate. I don't need a certificate from anybody. So everything, आपके thoughts को I feel you'll have to change. बिकॉज अगेन सेम थिंग, दूसरे के थाट्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आई कैन अपना रिस्पॉन्स, अपना रिएक्शन, देयर टू थिंग्स, वन इज रिस्पॉन्स एंड द रिएक्शन, तो वो हम चेंज कर सकते हैं. अ रिएक्शन आई कैन चेंज टू अ रिस्पॉन्स. मैम मेरा इस पे क्वेश्चन था कि जैसे आज के टाइम में हम बहुत सारे सोशल मीडिया से ऑक्यूपाइड हैं, तो हमारे कई बारी जो भी इमोशंस होते हैं वो उससे डिसाइड हो चुके होते हैं. हमें पता भी होता है कि ओके फाइन, हमें सोशल मीडिया को कट डाउन करना है, लेकिन हम नहीं कर पाते. तो ऐसे में हम क्या करें? आई थिंक कोई भी चीज़ को अवॉइड करना, कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसको अवॉइड करना इज़ नॉट द सोल्यूशन. उसको तो हमें सोशल मीडिया, यू कैन नॉट कट योर सेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया. सोशल मीडिया हमें ग्रोथ में भी हेल्प करता है, लेकिन अगेन हमारा जो रिस्पॉन्स, रिएक्शन, आई हैव टू कंट्रोल. क्या होता है कि हम, यू मस्ट बी नोइंग बेटर देन मी, कि हम वही चीज़ देखते हैं सोशल मीडिया में जो हम देखना चाहते हैं, वही चीज़ देखते हैं. सपोज इवन थॉट्स, इवन आजकल फेसबुक, आई थिंक दे कैन रीड योर थॉट्स. If you are thinking of something good, suppose you are thinking of visiting Egypt, Egypt का ही आएगा. So you have to again change your thoughts. And suppose if you are seeing, हमेशा बहुत समय लगता है कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये तो हमेशा ही हैप्पी होता है, मेरे साथ ही हमेशा दुख मेरे साथ ही होता है. But if you'll have to think, the other person, उसके साथ भी he must be having his battle, he has won. He is also fighting his own battle.
एक हमारे जूनियर थे तो ही उनका हमेशा बहुत हैप्पी पोस्ट आता है, बहुत हैप्पी पोस्ट, एंड ही विल मेक फील एवरीबडी वेरी जेलस. सेम पर्सन एक बार व्हेन आई वाज इन राजीव गांधी वो मेरे पास आए, बोले कि मैम मेरा प्रोस्टेट कैंसर है स्टेज 4, आई हैव टेकन लॉट ऑफ ट्रीटमेंट लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है. देन आई थॉट टू माई सेल्फ, इसी को हम इतना सबको, मैं एवरीबडी से कि क्या पोस्ट करता है बट डजंट ही हैव एनी प्रॉब्लम. सो दैट मीन्स यू नो दैट इज़ द वे ही इज़ फाइटिंग. तो मे बी उसके पास और ज़्यादा रीजंस हैं टू बी सैड, बट वो अपना फाइट कर रहा है इसी वे से पुटिंग अ हैप्पी काउंटेनेंस. सो ये हमें बोलना कि नॉट एवरीबडी लुक्स हैप्पी इज़ हैप्पी. एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टोरी, ओन बैटल, और इसको हमें भी समझना चाहिए. सो अगेन दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए. सबके अपने अपने फील्स है, ठीक है, कोई हैप्पी पोस्ट दे रहा है, फील हैप्पी विथ हिम, बट ऑलवेज रिमेंबर उसकी हैप्पीनेस इज नॉट माई हैप्पीनेस. जो भी चीज़ उसको हैप्पी कर रहा है मुझे शायद वो हैप्पी नहीं करेगा. तो दैट यू नो यू हैव टू बी वेरी क्लियर. You can't avoid social media. I don't know if that makes sense or not. Yeah. No, it does make sense, ma'am. And उसी चीज़ से अफेक्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आई थिंक हमारी जनरेशन या आने वाली वो इस चीज़ से बहुत इम्पैक्ट बहुत अफेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. उनको लगता है कि आई एम द ओनली पर्सन हु इज सो अनलकी एंड अनफॉर्चुनेट. मैम मेरा एक क्वेश्चन था. इट्स लाइक दिस इज़ एन एक्सपीरियंस जो मेरी दोस्त के साथ हुआ था जब वो हैदराबाद में थी. तो दिस वाज हर फर्स्ट टाइम टेकिंग थेरेपी, और वो एक थेरेपिस्ट के पास गई, उसने बताया कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरा करियर डिसाइड नहीं हो रहा, जो भी है. तो उसने द थेरेपिस्ट सेड कि तू शादी कर ले, तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो हाउ डू यू फाइंड कि कौन सा थेरेपिस्ट आपको ज़्यादा सूट करता है? रेड फ्लैग्स क्या है थेरेपिस्ट में टू लुक इन अ थेरेपिस्ट? एंड या बेसिकली ये क्वेश्चन है. You know, this is जो भी आपने बताया, that is beyond what you're thinking. It has much deeper roots. It is not शादी कर लो. ये एक फीमेल का, मैं बीइंग अ डॉक्टर आई हैव सीन, एक फीमेल का जो प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ इश्यूज होती है, दे हैव बीन ट्रिवियलाइज्ड. उसको इग्नोर किया गया है और लोग उसमें सेटिस्फाइड हो जाते हैं बोल के कि इसको हिस्टीरिया है, इसको तो आदत है, ये काम से भागना चाहती है, इसको मेंटल प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं मिला, यंग है तो शादी करवा दो. दिस इज़ द जनरल, इट इज़ नॉट ओनली इन इंडिया, इंडिया से बाहर भी यही होता है. तो ये चीज़ हमें चेंज करना है, और हम थोड़ा थोड़ा करके अपने सर्कल में ही इसको चेंज कर सकते हैं. वुमेन्स हेल्थ हैज़ बीन इग्नोर्ड, और उसमें खाली दूसरे नहीं, हम लोग खुद भी है. आई हैव सीन वन पेशेंट, एक फैमिली आए थे हमारे पास, and I have published a short article also. So this girl came, she came with a very influential family who works in a very good position in one of the very good TV channel. वो आए लड़की को लेके, she had colon cancer था. तो सब चीज़ बातचीत हुआ. I said that इनको तो सर्जरी कीमोथेरेपी की ज़रूरत होगी. सो उन लोग सब बातचीत करके बोले कि नहीं, हमने सोच लिया है ट्रीटमेंट नहीं कराना है. और नोबडी आस्क्ड दिस गर्ल कि तुम्हें क्या चाहिए. वो 28-29 ईयर्स ओल्ड थी. कोई नहीं पूछा उससे कि तुम्हें क्या चाहिए. और वहाँ बैठ के आई कुड सी द पेन इन हर आइज. शी वांटेड टू लिव, लेकिन उसके फैमिली, दिस इज इन अ इन्फ्लुएंशियल एडुकेटेड फैमिली, उसके फैमिली डिसाइड कर रहे हैं कि इसको ट्रीटमेंट लेना है या नहीं. क्यों? अगेन फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है. अगर उसके पास, अगर जो हम बात कर रहे थे, यू डोंट नीड लॉट ऑफ मनी, अगर थोड़ा सा भी पैसा है, ही विल वॉक आउट ऑफ द हाउस और खोजेंगे. बहुत लोग हैं ट्रीटमेंट में हेल्प करने के लिए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हम खुद वॉइस रेज करेंगे. तो ये दोनों सब घर चले जाते हैं. कुछ देर बाद ये लड़की दौड़ के भाग के आ जाती है, अकेले आती है, पूछती है मैम मेरे ट्रीटमेंट में क्या खर्चा चाहिए. I said, Miss, I was almost in tears. Can you look at this girl? Nobody wants her to live. I said, पैसे की ज़रूरत नहीं है. I'll find. There Prime Minister's fund है, बहुत सारे fund है. I'll fund for you. लेकिन हाँ तो करो ट्रीटमेंट के लिए. But after that they didn't come back. And we never knew क्या हुआ उस लड़की का. If I'm very optimistic, हो सकता है कोई कहीं पे ट्रीटमेंट लिया होगा. Yeah, I hope so.
बट डोंट नो, लेकिन उस समय का जो एक्सपीरियंस था, सो दिस इज हाउ वुमेन्स हेल्थ इज ट्रिवियलाइज्ड. वेरी मच. फॉर एग्जांपल एक टर्म भी है ना, डॉक्टर स्टिच, आपको पता होगा उसके बारे में, राइट? वेयर दे डोंट आस्क द वुमेन अगर उसको सर्जरी चाहिए या नहीं चाहिए. आप बेटर एक्सप्लेन कर सकते हो शायद इसको. बट दे आस्क द हस्बैंड कि डू यू वांट योर वुमेन्स like your wife's private part to be tightened for the man's pleasure and not for, like, they don't ask the woman. वो मतलब उस टाइम मतलब शी इज़ नॉट कॉन्शियस एट द टाइम, एंड जब तक वो उठती है तब तक उसके साथ, उसके बॉडी के साथ हो चुकी होती है चीज़ें, एंड देन शी रियलाइजेस. Yeah, I know this is something, I think this has to be looked in. Actually, अभी चेंज हो गया है. पेशेंट का सिग्नेचर चाहिए, उसके बिना नहीं होगा. बट दिस इज, इवन आई टू डोंट नो व्हाट हैपेंस कि ऑपरेशन टेबल में अगर कोई चेंज की ज़रूरत होती है, तब इसके बारे में आई थिंक आई विल फाइंड दिस आउट. उस समय पेशेंट का कौन देता है, हु गिव्स द कंसेंट. I think this is something important. I'm also not aware of it. But otherwise, before beginning the surgery, normally हम ये करते हैं, सारा बता देते हैं, patient has to give the signature. और उनको हम बता देते हैं कि ऐसा ऐसा अगर हुआ, suppose आपका कुछ parts निकालना पड़े, तो हम करें क्या? तो patient पहले ही दे देती है. Without patient signature हम नहीं करते हैं. लेकिन again, we all know patient signature कितना अपने will से करती है, कितना उस पर थोपा जाता है. We don't know that. But at least, first step, it has been taken. अगर आप कोई एडवाइस दे सकते हैं टू द मैन अराउंड यू, टू द मैन इन जनरल इन द वर्ल्ड, तो आप क्या देते हैं टू मेक देयर लाइफ ईजियर? आप क्या देते हैं एडवाइस? So, I think men still play हमारे लाइफ में, जो पुरुष है उनका बहुत बड़ा हाथ है, एंड हम इसमें बहुत पॉजिटिव हैं, और हम चाहते हैं हमारे जो मेन काउंटर पार्ट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करे. वो अगर उनको कोई इमोशनल नीड हो, वो अप्रोच करे. वो ये नहीं समझे कि ये हमारी वीकनेस है. अपने इमोशंस को व्यक्त करना, प्रकाश करना, ये वीकनेस नहीं है. तो हम चाहते हैं कि वो भी अपने जो नीड्स है, हमारे जैसे ही, हम जैसे अब यहाँ पे शेयर किए हैं वैसे ही शेयर करें. इसी बात में मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी. सिर्फ अपने इमोशंस को नहीं, अपने थॉट्स को भी, अपनी सोच को भी एक अच्छी वे में आगे रखना ज़रूरी है. बहुत बार बहुत लड़के बहुत चीज़ें एक्सप्रेस ही नहीं करते, बताते ही नहीं हैं, ये सोचकर कि उनकी बात या तो कोई समझ ही नहीं सकता या तो कोई सुन ही नहीं सकता. तो मेरा सजेशन बॉयज़ के लिए यही होगा कि वो अब झाड़ू पोछा लगाना और बर्तन धोना स्पेशली सीख लें, क्योंकि ये सिर्फ एक जेंडर रोल नहीं है, इट्स एसेंशियल लाइफ. मेरा एक बहुत छोटा सा सजेशन है मेन के लिए. आई वॉन्ट मेन टू बी रियल. वट एवर दे आर थिंकिंग दे वॉन्ट फ्रॉम द अदर पर्सन, जस्ट से क्लियरली वॉट दे वॉन्ट. दैट्स इट. I want men to focus on their mental health as well. जितना विमेन थेरेपी को एक्सेप्ट करती है, लड़के या आदमी या कोई भी इतने इजीली नहीं करते. तो मैं चाहती हूँ कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस दे और थेरेपी को एक स्टूपिड चीज़ ना समझे, जो कि मोस्टली. सो अब शिवांगी, तुम सबसे छोटी हो यहाँ पे, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सजेशन दोगी मैन को? मैम, मेरा सजेशन तो बहुत, मतलब कह सकते हो स्टूपिड सा है आप लोगों के कंपैरिजन में. इट इज़ कि मैं चाहती हूँ मैन अपने आप को थ्रू फैशन ज़्यादा एक्सप्लोर करे, क्योंकि एक टी शर्ट एक पैंट में नहीं चलती है पूरी ज़िंदगी यार. नहीं अच्छा लगता यार. मुझे अच्छा लगता है जब ऐसे मैन बाहर निकलते हैं, उनके लंबे लंबे नेल्स होते हैं, यासीफाइड होते हैं. आई लाइक दैट. तो आई थिंक यू शुड डू मोर ऑफ दैट. यू शुड एक्सप्लोर all योरसेल्फ. men, यू शुड नॉट please केयर listen to this. कोई कैसे तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे भाई तुम्हें कैसे देख रहा है. एट द एंड ऑफ द डे यू आर लिविंग योर लाइफ फॉर योर सेल्फ. तो मेरा एक और क्वेश्चन था कि व्हाट डज फेमिनिज्म मीन टू यू ऑल. मतलब कि फेमिनिज्म जो वर्ड है उससे क्या फीलिंग आती है आपको? मेरे लिए फेमिनिज्म का मतलब है फ्रीडम. फ्रीडम टू बी एनीथिंग दैट आई वांट टू बी. किसी के कहने से, किसी की सोच से, किसी की एक्सपेक्टेशन से मैं अपने आप को ना बदलूं.
मेरी चॉइस से मैं अपने खुद के मन को, अगर अपने मन से चल पा रही हूँ, अपने मन से चीज़ें कर पा रही हूँ, तो मेरे लिए शायद फेमिनिज्म अचीव इतने में हो जाएगा। सिर्फ मैं नहीं, हर औरत, हर लड़की अपने मन से अगर कुछ कर पा रही है अपने लिए, तो मेरे लिए शायद फेमिनिज्म अचीव हो गया है इन अ बिगर सेंस। ऐसी वो आवाज में शुरू से क्यों नहीं बोले? शुरू से कब? स्टार्टिंग से मतलब अब ओपन अप हो गए ना। कल के 4 बजे का बोला था मैंने तो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। मैम आप बोलो फेमिनिज्म आपको क्या है? अच्छा लास्ट है मैम का लास्ट है। अभी मुझे कुछ सोचा नहीं मैंने क्या बोलना है। तुम बोलो। फेमिनिज्म से मेरा मीनिंग है इक्वालिटी। तो थ्रू आउट हिस्ट्री, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ा और अभी का प्रेजेंट सिनेरियो भी जो मैं देखती हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं देयर इज़ सम लैकिंग द पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो उसको डिफाई करना, मैं हर चीज़ को क्वेश्चन करूँगी, इवन मैं खुद की चॉइस को भी क्वेश्चन करूँगी कि व्हाट आई एम चूजिंग इज़ बिकॉज हाउ आई एम कंडीशनड, इसकी वजह से मैं चूज़ कर रही हूँ, या फिर मुझे सच में ये चीज़ चाहिए। तो मेरा फेमिनिज्म का मतलब यही होगा कि ट्रू चॉइस में अपनी फाइंड आउट कर पाऊँ। टू मी फेमिनिज्म इज़ एक्सपेरिमेंट करना हर नई चीज़ के साथ, हर एक एंगल को देखना एंड बी बोल्ड अबाउट इट एंड बी करेजियस अबाउट इट। एंड मैम व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ फेमिनिज्म इज़? सो मेरे लिए फेमिनिज्म का जो अर्थ होता है वो नॉर्मली हम जो फेमिनिज्म का मतलब होता है उससे ज़्यादा है। फेमिनिज्म मीन्स यस इक्वालिटी डेफिनेटली, लेकिन इक्वालिटी से भी ज़्यादा इक्विटी होना चाहिए। एक फीमेल नीड्स, मेल नीड्स, दे आर डिफरेंट, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज़ को रिस्पेक्ट करना दैट दोनों के नीड्स डिफरेंट हैं एंड एट द सेम टाइम गेटिंग द सेम अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द सेम फ्रीडम कि मुझे जो करना है मुझे उसको एक हक मिलना चाहिए। और एक फिनेंशियल फ्रीडम, एक चूज़ करने का फ्रीडम, ऑल दीज इज़ फेमिनिज्म टू मी और बीइंग अ वुमन टू मी। मेरे लिए जो फेमिनिज्म की परिभाषा है वो मैं वही कहना चाहूँगी जो मैम ने अभी बोला है कि इक्वेलिटी से ऊपर इक्विटी को हम प्रेफर कर रही हूँ मैं, बिकॉज इक्विटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कि व्हाट आर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पीपल। तो अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ मेल, फीमेल एंड whatever the other genders are, we should provide according to them, according to that. Okay मैम, मेरा एक सवाल था आपसे कि अभी हमने इतनी सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया, लाइक इमोशनल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। आजकल अगर हम देखें तो एक और टर्म बहुत ज़्यादा प्रचलन में है जिसे हम स्पिरिचुअल हेल्थ कहते हैं। तो ये टर्म व्हाट एग्जैक्टली इट रेफर्स टू? स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी हम कहीं तक समझ पा रहे हैं, बट जब ये दो टर्म्स कनेक्ट होते हैं तो व्हाट डज इट मीन? आई थिंक अभी जो जिस समय में हम रह रहे हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये पहले भी था लेकिन हमें इसकी शायद ज़रूरत उतने ही नहीं फील हुई थी जितना हमें आज फील हो रही है। फॉर मी स्पिरिचुअल हेल्थ इज़ मेरे पूरे वर्ल्ड से मुझे जो डिस्कनेक्ट करे। हम लोग आई थिंक थ्रू आउट द डे वी हैव बीन टॉकिंग ऑफ द सेम थिंग, हाउ टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड येट रिमेन कनेक्टेड। So that is what to me is spirituality, spiritual health. सबके लिए डिफरेंट हो सकता है, किसी के लिए मेडिटेशन है, मेरा उतना पेशेंस नहीं है मेडिटेट करने का। सो मेरे लिए है आई रीड बुक्स, बुक्स मेरे लिए है, और इवन माई प्रोफेशन दैट इज़ माई मेडिटेशन एंड दैट इज़ माई कनेक्ट विथ स्पिरिचुअलिटी एज वेल। ओके, यू मीन टू से लाइक इट इज़ वन वे, मतलब एक रास्ता है कि मैं क्या हूँ इसे जानने का। ये एक Yes, रास्ता yes. हो It सकता is है। talking to yourself. आई एम फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ, तो इट कैन पेव अ वे फॉर मी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यू नो योरसेल्फ बेटर। मेरा यही सोचना है, अपने आप को हम जान सकते हैं ज़्यादा अच्छा, अपने आप को समझ सकते हैं, और मेरी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसे भी हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। बिकॉज जो हम सोसाइटी से हमारी कंप्लेंट्स रहती हैं कि सोसाइटी हमें नहीं समझती, तो उसके लिए सबसे पहले हमें खुद को खुद को समझना समझना ज़रूरी पड़ेगा, है। खुद को समझना ज़रूरी है।
और इसीलिए स्पिरिचुअल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट. एक स्टोरी मेरे मन में आई इससे रिलेटेड. तो एक बारी जब संसार बन रहा था तो भगवान लोगों ने बोला कि हम कहाँ छुपे, इंसानों से हमें बच के रहना होगा तो हम कहाँ छुपे. तो किसी ने बोला मंदिर में छुप जाइए, किसी ने बोला पहाड़ों में छुप जाइए, किसी ने बोला कि जंगलों में छुप जाइए. तो लास्ट में पता चला कि आखिरकार भगवान जाके हमारे अंदर ही छुप गए, It's so क्योंकि beautiful, वहाँ beautiful. कोई भी नहीं देख पाएगा उनको. तो हमें अंदर ही झांकने की ज़रूरत है भगवान को ढूंढने या की. दैट्स वेरी I think गुड. it's a beautiful story. ओके मैम, जैसे कि अभी हमने बात की स्पिरिचुअलिटी के बारे में कि हम खुद से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो खुद से कनेक्ट करने के लिए मैंने अभी एक प्रयास किया है. मैंने अपने विचारों को और अपनी अभी तक की जर्नी को मैंने अपनी एक बुक में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है थ्रू सम पोइट्रीज़. तो ये बुक मैं आपको डेडिकेट करना चाहूँगी. This is so precious, very, very precious. Deepika, it's very nice. मैंने इसका very नाम भी nice. अपने ही नाम पे दिया है. Very थैंक यू. nice. Lovely. Thank you. Hope you write more such books. आज का ये वीडियो हमारा एक प्रयास था सभी औरतों को, सभी एज ग्रुप के विमेन को एक साथ जोड़ने का और एक दूसरे को सपोर्ट करने का. तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपना कमेंट्स छोड़िए, तो इससे हमें सपोर्ट मिलेगा और सभी विमेन को, नॉट ओनली इंडिया, हर जगह की विमेन इसमें सपोर्ट ढूंढ सकते हैं. अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा. शेयर कीजिएगा. कमेंट करिएगा. और सब्सक्राइब कीजिएगा.